Welcome back, children, to our English class. We were doing chapter 5 from English, that is the three whalers. Okay. Today we have to start from page number 33. We had finished with half of the chapter. Okay. So let's go through the next half of the chapter. So now on page number 33, Master Mink thundered impatiently. "Stop it, you howling hyenas! What's the matter?" The three whalers were taken aback. So Master Mink thundered impatiently. मास्टर मिंक जो था वो बहुत इरिटेट हो गया था और इरिटेट होके मास्टर मिंक ने क्या बोला? "Stop it, you howling hyenas." That means hyena is an animal, children, which looks like a dog. Okay, but when it makes sound, it is much similar to a human laugh. So here they were crying like anything. Okay, तो मास्टर मिंग ने बोला कि ऐसा क्या मैटर है कि तुम लोग ऐसे रो रहे हो? Okay, the three whalers were taken aback. और जैसे ही मास्टर मिंग ने ये ऐसा बोला impatiently, तो तीनों जो whalers थे वो taken aback. That means surprised and slightly frightened. वो लोग एकदम surprise हो गए और डर गए थोड़ा सा. Okay, Peddler Peng was the first to answer. He began, "Sniff, sob. About a year ago, I had made 100 earthen pots. As I was on my way to the market to sell them, the donkey carrying them got frightened of his shadow and started braying. One by one, all my pots came tumbling down and broke into a million pieces. I was so upset that I wanted to cry, but I couldn't because I had to make up for my loss. Today, when I saw them crying, I was reminded of my precious pots and began to cry for them." So, in the next paragraph, what they are trying to tell children is पेडलर पेंग जो था उसने सबसे पहले आंसर दिया आउट ऑफ द थ्री. ओके, और जैसे ही उसने अपनी बात स्टार्ट की, ही वॉज सोबिंग, वो रोते रोते हुए अपनी बात बता रहा था. अबाउट अ ईयर अगो, एक साल पहले की बात है. आई हैड मेड 100 अर्दन पॉट्स. दैट मीन्स पेडलर पेंग खुद बोल रहा है कि मैंने कितने अर्दन पॉट्स बनाए थे? 100. ओके, एज आई वॉज ऑन माई वे टू द मार्केट टू सेल देम. जब मैं मार्केट की तरफ उन अर्दन पॉट्स को सेल करने जा रहा था, द डोंकी कैरिंग देम गॉट फ्राइटेंड ऑफ हिज शैडो एंड स्टार्टेड ब्रेइंग. तो जो डोंकी वो अर्दन पॉट्स कैरी कर रहा था, वो अपनी ही शैडो से फ्राइटन, दैट मीन्स डर गया और रोने लगा जोर जोर से. ओके, स्टार्टेड ब्रेइंग, दैट मीन्स डोंकी रोने लगा. One by one, all my pots came tumbling down and broke into a million pieces. जैसे ही डोंकी रोने लगा तो धीरे धीरे वन बाय वन करके जितने भी उसने पॉट्स बनाए थे सब नीचे गिर गए. एंड दीज पॉट्स ब्रोक इनटू मिलियन पीसेस, सब चकना चूर हो गए. आई वॉज सो अपसेट दैट आई वॉन्टेड टू क्राई. मैं इतना अपसेट हो गया था. दैट मीन्स पेडलर पेंग इज सिंग. ओके, कि मैं रोना चाहता था, बट आई कुडंट, मैं रो नहीं सका. Okay, because I had to make up for my loss. मैं रोऊंगा तो काम कैसे चलेगा, right? Today when I saw them crying, I was reminded of my precious pots and began to cry for them. तो आज जब मैंने इन लोगों को रोते हुए देखा तो मुझे मेरा वो दिन याद आ गया जब मैंने अपने प्रीशियस पॉट्स यानी कि वैल्यूएबल जो पॉट्स थे वो ऐसे घुमा दिए और इसीलिए मुझे आज रोना आ गया. Before Master Ming could say anything, Mrs. Chang spoke. "I got a letter from my son this morning. I don't know how to read, so I asked Warrior Wen to read it out to me. But he began crying as soon as he opened the letter. Something very bad must have happened to my son. Oh, my poor Chen." So, Peddler Peng had finished with his story. Peddler Peng ने अपनी बात रख दी थी, राइट? तो जैसे ही मास्टर मिंग अब बोलने जा रहा था, उससे पहले ही मिसेस चैंग बोल पड़ी.
मिसेस चैंग ने क्या बोला कि आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन दिस मॉर्निंग, आज सुबह मुझे मेरे बेटे का लेटर मिला। आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे रीड करना नहीं आता है, इसलिए मैंने वॉरियर वेन को रीड करने के लिए कहा। ओके, बट ही बिगैन क्राइंग, पर वो जैसे ही लेटर उसने हाथ में लिया, जैसे ही लेटर उसने ओपन किया, ही बिगैन क्राइंग। ओके, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। समथिंग वेरी बैड मस्ट हैव हैपेंड टू माई सन, ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा, तो ही वॉरियर वेन जो था वो उसे ओपन करते हुए ही रोने लगा। ओ माई पुअर चेन, क्या हुआ होगा मेरे चेन के साथ। As Master Ming consoled Mrs. Chang, Warrior Wen bravely fought back his tears and said, I never paid attention to my lessons and to my teachers at school, so I still don't know how to read. I'm ashamed of myself. After that, he began to wail. So, as Master Ming consoled Mrs. Chang, that means as Master Ming was trying to make Mrs. Chang feel better, उन्हें चुप करा रहे थे, Warrior Wen जो था, he bravely fought back his tears. That means वॉरियर वेन ने अपने आंसू को रोक के फिर वो बोला कि आई नेवर पेड अटेंशन टू माई लेसन्स एंड टू माई टीचर्स एट स्कूल, स्कूल में मैंने कभी भी अपने लेसन्स पे ध्यान नहीं दिया, टीचर्स जो कहते थे उससे नहीं सुना। सो आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रीड, इसलिए मुझे रीड करना नहीं आता है अभी तक। एंड आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, और उसके लिए मुझे बहुत शेमफुल फील होता है। ओके, आफ्टर दैट ही बिगैन टू वेल, और ऐसा कहते ही वो वापस से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कौन? वॉरियर वेन। मास्टर मिंग वॉज शॉक्ड, ही डिड नॉट से अनदर वर्ड। मास्टर मिंग ने जब वॉरियर वेन की ये बात सुनी तो ही वॉज शॉक्ड, वो एकदम शॉक हो गए और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सो चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? मिसेस चैंग जो थी उन्हें रीड करना नहीं आता था, राइट? तो उन्होंने लेटर किसे दिया रीड करने को? वॉरियर वेन को। एंड अभी हमने लास्ट में ये पढ़ा कि वॉरियर वेन भी अपनी स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, सो उसे भी रीड करना नहीं आता था। तो वॉरियर वेन ने जब लेटर खोला तो उसे किस बात का रोना आ रहा था? उसे उस बात का रोना आ रहा था कि उसे रीड करना तो आता ही नहीं है, इसलिए ही वॉज फीलिंग शेमफुल। ओके, तो और मिसेस चैंग को ऐसा लगा कि वॉरियर वेन इसलिए रो रहा है कि ज़रूर उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा है, उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ हो, और या फिर वो कोई ट्रबल में हो, तो ऐसा सोच के मिसेस चैंग भी रोने लगी थी, राइट? एंड पेडलर पेंग को अपने अर्दन पॉट्स की याद आ गई थी जब वो टूट गए थे, तो ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर दैट रीज़न। ओके, सो all of them were crying for different reasons. Okay, so with this we come to an end of this chapter. Okay, hope you all enjoyed this chapter. Just read out the same. Okay, end of session. Hope you all enjoyed it. See you in the next lecture.